हाय एवरीवन, नमस्कार। अ, पहली बार के लिए मिशन समृद्धि का समिट में अटेंड कर रहा हूँ। और पहली बार के लिए ऐसा हुआ है कि मैंने कोई एक समिट को आई अटेंडेड एवरी सेशंस। सुबह से शाम तक मैं कभी होटल या कहीं पे और गया नहीं, सारे सेशंस को अटेंड किया। सो इट वाज रियली वन ऑफ इट्स काइंड समिट जिसको मैंने अटेंड किया। एंड डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक इंस्पिरेशनल कंटेनर के लिए, सो एज अरुण जी वाज टेलिंग अबाउट एजुकेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? Education is awareness. Awareness about yourself, awareness about people, awareness about life. बट मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दूर अपने एजुकेशन सिस्टम में इससे बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि एंड गोल कुछ और है और इससे हम लोग दूर निकल चुके हैं। सो इंस्पिरेशनल कंटेनर का क्या काम है? इंस्पिरेशनल कंटेनर का काम है कि नाम जैसे इसका बताता है, इंस्पिरेशन हमें वहाँ पे लोगों के बीच में लेके आना है और उसके लिए हम एजुकेट करेंगे। इट्स अवेयरनेस। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को कनेक्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन के साथ या फिर कॉलेज एजुकेशन के साथ, तो वहां पे हम उसको लिमिट कर देते हैं। वैसे ही एक और वर्ड है स्किल। जब भी हम स्किल वर्ड को सुनते हैं तो हम उसको किसी आईटीआई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो हाउ डू वी पुट ऑल दिस थिंग्स, जो हम लोग मिशन समृद्धि के D1, D2, D3, D4, D5 जो मॉडल है, उसको हम कैसे एक कंटेनर में डालकर, जितने भी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने सेगमेंट्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सब अभी अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं। सो द आइडिया इज इन सबको एक कंटेनर में कैसे अच्छे प्रैक्टिसेस को डालकर हम लोग एक गांव में वी कैन टेक दिस थिंग टू वन विलेज। सो इसकी जब कंसेप्ट शुरू हुई, वी टुक 4 सेशंस। अरुण जी ने मॉडरेट किया उसको, चारों सेशंस को। अब ये कौन सा चल रहा है? यस यस या हाँ शायद एक्साइट हो गया बात। यस। सो ये जो कंटेनर था, हम लोगों ने 4 सेशन किया। उसके बाद वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन हाउ डू वी visualize it, how do we visualize it, how do we create it. So what came was, this was the first design that we created. This is the version 1. So before actually prototyping it, in the ideation phase, we went through 3 of the iterations. This one was the first one. But when we went to the manufacturer, we came to know that it's very difficult to create this, and how do we have a very simple one which we can create here in Chennai. So this was the version 3 which we ideated, and after that this came into picture. So this is the container that we are looking forward to, we were looking forward to, and this is what we will carry over a truck. So the dimension of this container is 8 feet by 20 feet. This is the medium dimension. इससे छोटा भी आता है, इससे बड़ा भी आता है, but this is the medium dimension, and we want to put all the good practices inside this container. So we have 2 doors, you can see. We have 2 doors. It's just like the shutter door you can see in shops. And since I started young tinker, तो मैंने बोला कि ठीक है, वो स्किलिंग वाली चीजों को how do we put it inside it. So initially the idea was to put this entire tinkering concept inside this box, but we thought of, why do we put it inside? Why can't we put it outside? So when this entire thing goes to a village, we ask all the students to actually assemble everything outside the container. So they have to bring all the tools and put it outside the container. So you can see all the pegboards attached there. So for example, carpentry, electrical, electronics, all the concept that we see, all the concept will be outside, because we have converted this entire container into 2 segments. First one is the indoor segment and second one is the outdoor segment. So all the carpentry work, all the hard skills work needs to be done outside that, and inside we have all the sophisticated things. For example, if you have computers, if you want to have library, the Ullais library thing, we can put it inside. So this was the day 1 of the container that you are seeing here. Okay, and then
So we actually tried to figure out how do we take it to the village. So this is a small village that you can see. So we have converted this place into a village. So I've invited all the villages there, you can see. And so this will actually happen when we'll invite the villagers to that place. So at first you can see all were standing and seeing what's happening. Okay? And slowly what they will do is they will try to interact with these tools. So let's see what they have done. Now see, they have started interacting with this. Okay, so students have started So these are not students, these are youths. So this will exactly happen when we'll take this entire thing to village. Okay, so they enjoyed this. To cheer up, yay! So this was the excitement. So we want to give people a lot of excitement once this container goes to their village and they try to connect it. So this container is for 4 kinds of people. The first one is the student, where we have connected with a lot of organizations. We have TQI with us here, who is Talent Quest of India. Ram is here. So he is one of the collaborators. It's for the first time It's for the first time I and Ram, we are meeting physically, but let me tell you, we have collaborated and we have already started our programs way before coming to this summit, because Mission Samriddhi was the platform for us and we could actually do it. So Ram, I think how many students we have impacted collaboratively? So we have taken in the clusters, in Tamil Nadu clusters, with the Mission Samriddhi team, our volunteers, we have done a student holistic development program where we take our Ullas classes first and then a thematic sessions on knowing the village, what Arun Jain sir was talking about, learning subjects using the surroundings. So we had different constitution session, know your village, know your library. At the end of culmination part of it, we had a village planner session, and you don't believe the amount of the colorful their dream village the students have created. So the volunteers, the TQA volunteers, they have created their own village at first in their college hostel, prepared that, and then went and at the last session, they had, the students have created their village and they come as a table, they will select their own sarpanch, and then they had made their own dream village. And it is so amazing to see the parents came and then saw, and even the village panchayat team came and saw the students, what they have created. It's so amazing that it has ignited and actually inspired them to dream about that village. So we just started off in the final session in Viluppuram in whole February. We plan to have it in other districts. So the collaborations have started and it started to inspire. And we are waiting for the this container also to reach and our volunteers and students to take it up. Thank you so much. So TQI is one of the organization who would take this container to villages, and since they have this volunteering network, and really a very powerful volunteering network who can actually take this thing forward. So this is one of the collaborations that we did, and we hope to do it in coming future. And all the partners who are building this. So that's what we are saying, connecting the dots. So all the organization, somebody from the cluster framework also. Anand Mohanji from Ullas Trust. Anand Mohan from Ullas Trust. Mohan Tambe ji, Humsafar se. And Gyan Prakash. Pradeep Ghosh ji. Pradeep Ghosh ji. अभी नहीं किया है, करने वाले हैं. जिन्होंने नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन करने तो वाले हैं अभी. शुरू तो नहीं किया, लेकिन बात तो किया है ना हम लोगों ने, करने वाले हैं. यहाँ पे काम होता है. जल्दी होता है. Yeah. Server. So actually, we started the pilot in our Viluppuram cluster. He is the cluster coordinator, Babu. He is the one who led everything from the front to ensure that this has happened.
whenever we want to try a Ullas experiment, we always try at Viluppuram because they are the ones who show the highest agility. Okay. डॉक्टर रूमा से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा. यस, वी द पीपल अभियान. जो भी कंटेनर में आना चाहता है इधर आ जाए. जिसको भी कंटेनर यूज करना है, अपना सामान डालना है, स्पेस बुक कर ले. सबको स्पेस मिलेगी 2 फुट बाय 2 फुट, 1 फुट बाय 2 फुट. क्या वॉल्यूम में मिलेगी? वॉल्यूम में मिलेगी. वॉल्यूम में मिलेगी. आप भी 8 बाय 8 बाय 20 का है. वॉल्यूम 8 बाय 8 बाय 20 का है. 8 बाय 8 बाय 20 के. अपने बाहर भी है, आउटसाइड वाला जो है. आउटसाइड तो सारी स्पेस मिलेगी आपको. हेमंत सिंह जी भी है, और पेशवे जी जो अभी चले गए, दिलीप पेशवे जी, फार्म टूलिंग के लिए. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वी द पीपल अभियान से भी बात कर रहे थे, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड. सो दे हैव फ्यू चार्ट्स जिसको हम प्रिंट करके लगा सकते हैं. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को कई लोगों ने आज तक ऐसे हार्ड बुक भी नहीं देखा है. भले एक बार किताब भी जो है वो भी, ये जो किताब है इसको कई लोगों ने देखा ही नहीं है. इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखा था इसको. तो इसका टच एंड फील जो है, वी वांट टू पुट दिस इनसाइड द कंटेनर, ताकि गांव में जब लोग जाएं तो कम से कम एक बार टच करके देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी दिखती है, ऐसा होता है. कितने लोगों ने देखा था जस्ट ये कि हाँ, और इसके साथ साथ इसकी जो अभी की यूज कर रहे हैं कॉपी छोटी वाली, वो भी रख सकते हैं. और इसमें जो ये हम लंच के बाद करने वाले हैं, तो इसमें जो चित्र बने हैं उसको भी इसी में इस्तेमाल करें कि बच्चे देखें इसमें चित्र क्या बने हैं और उसके हिसाब से वो खुद चित्र बनाए. तो वो आइडिया था. तो एनीवे मैं कुछ ज्यादा. ग्रेट, थैंक यू. सो ऐसे ही और जो उल्लास ट्रस्ट की जो लाइब्रेरी है, हमारी उल्लास की जो लाइब्रेरी है, हम उसको भी सारे गांव में ले जाना चाहते हैं. सो उल्लास में तो बहुत सारे किताबें, मैं अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो किताबें हैं वो ऑलरेडी आप कंटेनर में जाके देख सकते हैं. और जैसे अभी शिवांग जी ने मेरे को बताया कि उनके भी ऐसे मंथली पब्लिकेशंस आते हैं. सो वी कैन कोलैबोरेट. आरोग्य संपदा जैसा ये एक है, उसी के जैसे उनके कई बुक्स आते हैं. सो दे कैन डायरेक्टली कोलैबोरेट विथ उल्लास लाइब्रेरी, और हम ऐसे कई पब्लिकेशंस को सारे गांव में भी ले जा सकते हैं. आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सो हेलो एवरीवन. ये जो इंस्पिरेशन कंटेनर का जो आइडिया है, एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश है. इसमें जो लाइब्रेरी कंपोनेंट है वो आप लोग सब लोग जानते हैं, और हम लोग इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस भी करते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है. और इसी चीज़ को, रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए गांव के बच्चे जहां पर कि एक्सेस नहीं होता है टेक्स्ट बुक के अलावा, इवन टेक्स्ट बुक्स भी नहीं होते हैं, उन बच्चों के हाथ में ऐसी किताबें, ऐसी साहित्य जो चाइल्ड फ्रेंडली साहित्य हो, और बहुत ही ऐसे वेल रिसर्च पब्लिशर्स के द्वारा ली गई हैं ये किताबें, जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है. तो ये भी आप लोग को उस कंटेनर में दिखाई देगा. बहुत ही ग्रेडेड मटेरियल है बच्चों को आराम से सीखने के लिए. ठीक है, ग्रेट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आनंद जी. प्रदीप जी बच्चों के साथ एक अच्छा अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वो अभी मजा आएगा. This is just a connection is happening when what we are talking about, celebrate, connect and catalyze. This is where the connection making the difference. The connection of 10, 15 organization coming under one place, one roof, coming together in 20 feet by 8 feet space. I think the whole power will emerge in no time. But what you are discussing in day 1, day 2 is coming almost together over here. Yeah, go ahead. थैंक यू. आप लोग थोड़ा सा बस सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा कंटेनर बना सकते हैं. और आप सभी से हम लोग सजेशंस भी लेंगे इस चीज़ के ऊपर.
प्रदीप जी के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो प्रदीप जी इज वर्किंग ऑन समथिंग विच इज नोन एज विच म्यूजियम स्कूल्स. सो दे आर वर्किंग ऑन म्यूजियम स्कूल्स. अंडर प्रिविलेज बच्चों को म्यूजियम्स लेके जाते हैं वहाँ पे सिखाने के लिए. तो ये जो इंस्पिरेशनल कंटेनर है उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैंड्स ऑन और म्यूजियम जैसे हैं. वुड लव टू एक्सप्लोर ऑन हाउ वी कैन एक्चुअली टीच द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इन विलेज दैट वे, जैसे आप वहाँ पे करते हैं. थैंक यू सो मच. वैसे ही मोहन तांबे जी का ये एक डिवाइस है जो उन्होंने डेवलप किया है. हमारे पास इंग्लिश ट्यूटर से बहुत सारे कंटेंट वी आर थिंकिंग. इंग्लिश ट्यूटर से इज देयर एनीवन विद अस? स्पोकन ट्यूटोरियल. ओके, स्पोकन ट्यूटोरियल जो है उनके पास बहुत अच्छे कंटेंट है, बट हाउ डू वी टेक दैट टू विलेज? ये क्या हम इस प्रकार का एक डिवाइस ले सकते हैं जिसमें कि सारा डेटा इस डिवाइस में रहे और ये एक हॉटस्पॉट जैसा वहाँ पे लोकल हॉटस्पॉट जैसा क्रिएट करके हम उससे ले सकते हैं? तो मोहन तांबे जी का ये इनिशिएटिव है हम सर्वर करके. जैसे माइक देते हैं. So think of it this way, if all the wonderful creations which you all are making can just reside in this handheld server, and if people around this whole hall, even right now you can do it, it's on, okay, you can connect it on your mobiles by just typing in hums.co, and the terabytes of information which is inside this, not right now, but soon will be when you all contribute, that can be accessed by everyone around. Not just everyone around. Now this server can be there with all the organization. Like I was talking with her from the Seva organization where all the Mahilas in different places, they all are doing wonderful things. They all can give the videos about all the new thing they are doing and the training videos for whatever they ought to do. They all can be in this and can be shared with the concerned groups. And this way, like WhatsApp, one can disseminate information amongst each other, and that information can come right at the container level. So all the Nukkad Nataks which we all have enjoyed can be seen from this. All the different experiments which they are showing out there, the details of that, with just scanning a OCR, you will be able to see the detailed video about it. So everyone on their mobiles will be able to see more details in a video form for whatever interests them. It is a walking library of all the world of information with no limitations. Wow. Concept is when the container is there, on Wi-Fi connection is always weak in a village. You have all the information of Wi-Fi connection in the container itself. All the 1 terabyte of the knowledge is sitting there, which is required over there. So you don't have to depend on the internet when the container is there. So your network is contained within a container. Great. Apart from this, we also have one more professor, Dr. Dilip, who is from. We also have Professor Dilip from VNIT, Nagpur. He just left, but I just want to tell a very good thing that we are also collaborating with. Dr. Dilip Peshweji. So we have collaborating with him because they are doing something similar. At the same time, they are giving a diploma certificate to students. Can we do also give a kind of a certification to students, those who comes here? Not just the student, adult भी जो आते हैं वो भी, can we give them also? Since हम लोग उल्लास के साथ जो काम कर रहे हैं, the sessions that we are giving, यदि उस certificate में एक NIT का भी यदि logo आ सकता है, that will add value to the certificate. Beautiful. And That's another connection. And then there is a health connection. नयन मल्होत्रा जी कुछ health connection की बात कर रहे हैं जी. container में. What you want to imagine your health to be there, Ruma. So everybody just take a mic and say what you want to be in container. So it will be much easier. हेल्थ कनेक्शन के आप भी बोलना चाहेंगे इसके बाद? मैं इंट्रोड्यूस कर दूं. हेल्थ कनेक्शन के Then I'll tell. संदर्भ में मैं दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ. एक तो ये कि शॉर्ट है ना, 2-3 लाइंस ऐसा रखा. अभी जैसे दिनेश जी ने भी बात की थी, हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं. तो जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, हम बीमार न पड़ें उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका अगर कुछ कंटेंट इसमें आता है. हमारे आशीष जी खड़े, मैंने देखा नहीं था. दूसरा कि हमारे घर में मसाले रहते हैं, उन मसालों से
और हमारे आसपास कुछ साधारण जड़ी बूटियाँ जिनको हम पहचानते हैं और जिनको हम नहीं पहचानते हैं, ऐसी थोड़ी सी हम अगर इसमें डालें और उनसे सामान्य स्वास्थ्य की जो समस्याएं आती हैं, मैं कॉम्प्लिकेटेड बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, टीबी है या कोई कैंसर है या कोई हार्ट अटैक, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, पर सर्दी है, ज़ुकाम है, बुखार है, ऐसी समस्याओं के, चर्म रोग हैं रूटीन के, उनको घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें जानकारी दे सकते हैं। और उसमें ये हमेशा डालते हैं कि ये कोई वैद्य का या कोई प्रैक्टिशनर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी इंटरवेंशन है जो हम क्यूरेटिव के रूप में कर सकते हैं सिंपल डिजीजेस के होम मैनेजमेंट के लिए। ये दोनों चीज़ वो दिखा रहे हैं। ये हमने सिंपल हिंदी में कुछ कंटेंट तैयार किया है, बाकी भाषाओं में भी ये कंटेंट तो इसमें हम मेडिसिनल प्लांट की भी प्रैक्टिस मेडिसिनल प्लांट भी ला सकते हैं। हाँ, वही मेडिसिनल प्लांट्स मैंने बताया जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, उनको हम उसमें कुछ तो हमने डाले हैं, आपके पास आसपास कुछ और भी मिलते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐसा एक डू इट योर सेल्फ जैसा ही है। जैसे आशीष, कोई भी एक आप पढ़ के बता दीजिए, कोई भी एक पढ़ के, पहले पेज से कुछ, कोई भी एक पौधे के बारे में बताइए। गुडुचि सभी जानते हैं, अमृता, गिलोय, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया बॉटनिकल नेम है। इसका उपयोगी अंग है पत्ती सहित मोटा तना, पत्ती रहित मोटा तना। रोगों में अगर उपयोग करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बुखार, लीवर संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग है जैसे खुजली, फोड़ा फुंसी, जोड़ों में दर्द है, इन सभी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग विधि है, इम्यूनिटी के लिए गुर्ज के अंगूठे जितनी मोटी 8 से 10 अंगुल लंबी पत्ती रहित तने को रात भर 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह पीस कर छान कर ऐसे ही या 1 चम्मच शहद के साथ खाली पेट सेवन करें। डाली के छोटे छोटे टुकड़े सुखाकर पीस कर चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं। उनका प्रयोग भी काढ़े के रूप में कर सकते हैं। चर्म रोग, बुखार व जोड़ों के दर्द में आधा चम्मच गिलोय चूर्ण प्लस चौथाई चम्मच सोंठ का चूर्ण प्लस 1 चम्मच घी के साथ लें। खुजली या सर्दी खांसी में 1 चम्मच गिलोय पाउडर का 1 चम्मच शहद के साथ प्रयोग करें। सो यू कैन सी वेरी सिंपल टिप्स ऑफ डू इट योरसेल्फ। हम में से बहुत लोगों ने गिलोय देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर यूज नहीं कर पाते, कैसे करें। सो वेरी सिंपल, डू इट योरसेल्फ, उसकी टोटल जानकारी देने का प्रयास किया है। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिशनर, सो डोंट ट्राई टू बिकम ए प्रैक्टिशनर। डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट इज promoted here, and such things can be added. Meratra ji, Tinker. हाँ तो ठीक है, नहीं this is okay, मतलब we'll come to that. It's connecting the dots in a container. Yeah, detail की बात नहीं है. We just look at it. Each piece is connected. Shehbaz, Jaya बहन wants to connect something in container. मैंने देखा और मैंने वहाँ पर भी देखा था। मुझे लगता है कि जो हम थोड़े बड़े होके ये करना गांव में करने जाते संगठन, तो उसके कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स के वाइज, ये कॉन्सेप्ट के थोड़ा लिख के सेंसिटाइज अगर बच्चों से ही हम करें तो मुझे लगते हैं उनको भी ये पता चले, छोटे छोटे बच्चे के अंदर कि ये क्या होता है और उससे क्या बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि ये भी डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल जया बहन, इसको हमें विजुलाइज करना होगा, पोस्टर से नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि कंटेनर में सब एक्सपीरियंशियल हो, ऐसा हो जो हम टच एंड फील कर पाए। तो संगठन को कैसे हम पोस्टर में ना बनाएं, कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करें, कोई कार्टून बनाएं, कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि वो एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें। हमारी इमेजिनेशन चाहिए इसके लिए। और इमेजिनेशन क्या होगा संगठन बनाने का, उसमें महिला का संगठन, पुरुषों का संगठन अभी अलग अलग है, कैसे मिलजुल के काम हो सकता है। तो हमें एक नई कल्पना करनी होगी। इसमें ये कल्पना मुझे अच्छी नहीं लगती कि एसएचजी मेन के क्यों नहीं हो सकते, एफपीओ वुमेन के क्यों नहीं हो सकते। ये सब चीजें जो हैं, ये नहीं, वैल्यू ऑफ द
कोऑपरेटिव वाइज ये संगठन की वैल्यू क्या है, value क्या उसके बारे में हम बच्चों से ही उनको डाल सकते हैं। imagine कुछ करना है, हमें कुछ ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि ऐसे जी कोऑपरेटिव, पर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के वैल्यू क्या है गांव के अंदर, तो वो डाल So सकते we हैं। need some creative people who can raise their hand to participate in converting into creativity, not just putting a poster. बहुत सारी चीजें पोस्टर में होती हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं यार. Shall I add something? This is one area which generally we tend to ignore, which is sports. Especially indoor sports, this is the best place for the container. Indoor sports means not just carom and chess. I am talking about the native indoor games which are very much prevalent in our villages. We have lost most of them. We can bring them all into the container. Okay. Next. Who is next to our? चूंकि एक चीज जो गवर्नेंस का पार्ट है, वो कैसे नागरिकता और सिटीजनशिप, तो लेकिन उसके बाद वो गवर्नेंस का बच्चों से ही बाल पंचायत, अरुण जी इसको बहुत फोकस करते हैं, बाल पंचायत और किशोर पंचायत, तो एक तरह से वहीं से गवर्नेंस के पार्ट में, मतलब एक तरह से मतदाता के रूप में भी किशोर के स्थिति में आने के बाद नागरिकता का अगला वो बनेगा, तो उसको आगे लिंक करते हुए कैसे गवर्नेंस की इशू पंचायत, बाल पंचायत और उसके रूप में लिया जा सकता है, उसके लिए कुछ रेखा चित्रों के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से कुछ साहित्य भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। गांव में अगर एक हफ्ते के लिए रुका है तो वहां पर बाल पंचायत करके और या कंटेनर के सामने बैठा के बाल पंचायत, किशोर पंचायत, कुछ गांव के इशूज और गवर्नेंस के इशू इस तरह लेकर वहीं से उसकी नींव पड़ जाएगी, फिर मेरे ख्याल से आगे एक बढ़िया। Arun ji, quickly, there is a student here who wants to say, come out with a few ideas. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கே குணாலன். என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் நான் இப்போ கரண்ட்டில் வந்துட்டு சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுன்னு இருக்கேன். என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்க்கும்போது காது கேட்காத பர்சனுக்காக வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு காது கேட்காதவங்களுக்கு அவங்களுடைய வைப்ரேஷன் வந்துட்டு அவங்களோட ஷார்ப்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நான் எப்படி கொண்டு வரேன்னா வந்துட்டு தமிழ் ஸ்வரங்கள் இருக்கு இல்லையா, சரி கமா பதனி, ஸோ அந்த டீட்டெயில் வந்துட்டு நம்ம அதை வைப்ரேஷன் வந்து நான் இதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி இது மூலயமா வந்துட்டு காது கேட்காத இருக்கிற பர்சனுக்கு நான் வந்துட்டு அதை கொடுக்கலாம்னு பார்த்துருந்தேன். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டு போச்சுன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் இல்லை வந்துட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் வந்துட்டு இது மூலயமா நிறைய வழிகளை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம். He has come out with a brilliant idea. He is a final year student who is going to do a project on people with hearing deficiencies. He wants to introduce a lot of tools and techniques for people who have this kind of disabilities also to use the container. And he wants to do it as part of his final year project. Sure. I think that's a very good idea. So this diagnostic could be another thing on all the diagnostic, whether eye diagnostic, ear diagnostic or BP diagnostic, all of it. Yeah, e-Seva project. I represent an organization called Nalanda Way Foundation. We have a similar model called an Art 1D. It's a vehicle which we take to multiple schools. We have done 26 camps using that vehicle. Okay. That vehicle has a large, big screen television. It has board games. It has art activities for children. We also screen movie documentaries and cartoons for children. So it can be used for children as well as the community, for elders, parents, so many. We can bring art activities which we do for the children. And board games, for example, he spoke about traditional games. We have designed games which we use, for adolescents in the communities for de-addiction and the emotional, development and so many other things we have been doing. So we'll be more than happy to partner this container project, and we'll bring all that we have been doing as part of our R20 to this project. Very good. Thank you, sir. Give the next person. And most important, they are based out in Chennai. Yeah, we know. We have already started. There is a comment from an Infleet employee also.
आई थिंक ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले हमारे विजन सेंटर्स की तरह डेवलप हुआ था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब वो एक खाली विजन सेंटर पास रखो माइक से। हाँ, विजन सेंटर्स की तरह नहीं, इसको मल्टीपर्पज हम यूज कर सकते हैं एजुकेशन में और डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो हम डोर टू डोर स्क्रीनिंग तो करते ही हैं, जैसे आउटरीच प्रोग्राम्स में, तो हम इसको स्कूल आई स्क्रीनिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बच्चों का डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे, उसकी स्क्रीनिंग्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, तो हम तो वेट कर रहे हैं कब बागपत डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये वाला। इसमें एक जो चीज जोड़ी जा सकती बोले ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल उसके मॉडल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। कंपोस्टिंग है, जो किचन वेस्ट की कंपोस्टिंग है, वो उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, बड़ी इजीली उसमें उसको मैनेज किया जा सकता है। इवन कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के लिए भी, जीवामृत कैसे बनाना है, घन जीवामृत कैसे बनाना है, ऐसी कुछ बेसिक जो चीजें हैं किसानों को जिसकी जरूरत। फिर एक सबसे बड़ी बात जो रहती है, खेती में कीड़े बड़े तंग करते हैं, कीट, पेस्ट। तो पेस्ट लिटरेसी, हम जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं, वैसे हम तो सबको फ्रेंडली मानते हैं, पर फिर भी मोटी समझने के लिए जो शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के कीड़े हैं। शाकाहारी जो आपकी फसलों को खाते हैं, मांसाहारी उन फसलों को खाने वाले कीड़ों को जो खाते हैं। तो आपके जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं और जो तो उनके फोटोज वहां अगर हों, उनकी पहचान और लाइफ साइकिल की पहचान करा दें, बोतल में रख डाल देंगे, तो बोतल में रख फोटो वैसे भी लग सकता है उस समय कि उसके लाइफ साइकिल बता देंगे, तो फिर वो जैसे लेडी बर्ड बीटल है, जैसे ऐसे कुछ नाम मैं बता सकता हूं तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आइडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। So there is a message from the Intellect employee. So there is a message from the Intellect employee in a YouTube chat. Okay. Just hold on. Yeah. So there is a message. One by one. Yeah. So it's a message from the Intellect employee who has been watching this YouTube live streaming, and he says his name is Rajiv Shah. He has mentioned this is a superb idea for taking knowledge to village children. It can also be extended to have mobile health checkups and inculcate sattvic eating habits. Showcase multiple video streams on science and technology. This can become a breakthrough in bringing innovative ideas from village students. Super initiative. Thank you. Yeah, Savita. Thanks, Savita, Raju. just after. On lines of that, just want to add two more things. We can have the Ullas kit and especially the DOD and planners there, and maybe we can display the formulas there, the success formula, planning formula, that will arouse a curiosity among the children. What is this? So they will have a curiosity to learn what is this. Yeah, you can paint it on the outside. And one more thing on lines of what Nachu said, there's one more thing called Super Brain Yoga. It is taught a lot in the schools now, and it helps in balancing the left side and the right side of the brain, which is proven by research that it proves a lot of change in the children to follow the right path and helps them, especially in the adolescence age. So maybe that charge can also be introduced there, and meditation if it's allowed. Okay. I would request everyone to please keep silence so that we can continue this. Yeah. Sharnagat ji, yeah. मेरी एक आइडिया ये है कि हर एक गांव में पीने के पानी की स्कीम है, हर एक स्कूल में पानी दिया जाता है, हर एक घर में हम पानी पीते हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी पी रहे हैं हमें पता नहीं है। तो एक सिंपल हम कंटेनर में रख सकते हैं, वो H2S वायल जो PHED डिपार्टमेंट के पास होता है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत को देते हैं ना किसी को देते हैं। तो ये H2S वायल जो है उसमें केवल पानी भरना है जहां से आप पीते हो। बॉडी टेम्परेचर में यदि वो काला होता है पानी तो समझना है कि वो पीने लायक नहीं है। तो ये यदि वो रखते हैं तो कम से कम ये तो पता चलेगा पानी पीने लायक है या नहीं, और बच्चे भी कर सकते हैं और घर में भी ये किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। नमस्ते, मेरा नाम शुभमयी है और मैं सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन से हूँ।
तो जैसे कि सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से हम आर्ट को भी क्राफ्ट को भी प्रमोट करते हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव्स है, आर्ट क्राफ्ट की कोऑपरेटिव्स है। तो मैं एक आइडिया ये सोच रही हूँ कि जैसे बच्चे लोग पढ़ के और देखकर लर्न एंड प्ले सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस टाइप का भी कुछ प्लान कर सकते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो आज लुप्त होते जा रही है, या बच्चों को उनके बारे में नहीं पता कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्लॉक्स दैट कैन बी यूज्ड। सो ऐसे कुछ ब्लॉक्स अगर हम रखें रंगों के साथ वहाँ पे, दे कैन जस्ट कम एंड वो ब्लॉक प्रिंटिंग करके क्लॉथ्स पे देके, और फिर उनको भी पता चले और शायद उनका उस क्राफ्ट की तरफ, वो जो लुप्त हो गया है आर्ट, उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो और कहीं ना कहीं हमारे पुराने क्राफ्ट के साथ जुड़ जाए। वेरी नाइस। नमस्ते, मैं ओमकार ज्ञान प्रकाश फाउंडेशन की ओर से, जो डॉट्स कनेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो स्पेशली एजुकेशन इज अ ब्रॉड टर्म, सो वी आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन, सो इन अ प्राइमरी एजुकेशन। इसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो टीचर्स है उनके साथ हम जब काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि टीचर्स के लिए आईसी मटेरियल जो क्लासरूम प्रोसेस में उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है या बच्चों के साथ करना पड़ता है, इसके लिए ये कंटेनर जरूरी है, जिससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है वो बच्चों के लिए मिलेंगे। दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स है उनके साथ जब हम स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पे हम खुद काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार से इनको एक्सपोजर अलग अलग लेवल पे दिया जा सकता है। ये दूसरा है। और तीसरा है कि जो कम्युनिटी लेवल पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हाउ टू मोबिलाइज द डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम द विलेज, उसके लिए डिफरेंट आइडियाज जो है वो इस कंटेनर से जाएंगे। इसके बदौलत बहुत सारे लेवल पे हम स्केल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच। थैंक यू। आई थिंक टाइम के हिसाब से या जस्ट या मनीष फाइनमैन ने पहले कहा था, जो कि काफी मशहूर है, कि आई डोंट अंडरस्टैंड till I can actually feel it, play with it, then only I understand. यानी कोई भी चीज जब तक आप टिंकर राउंड नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आती है। तो जैसे इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग का कहा, जब तक आप खुद आजमाते नहीं है उसे, तब तक वो चीज आपके जहन में नहीं जाती है। तो यहाँ अगर सारी चीजें जैसे अरुण जी इन्होंने सब कल्पना की है, अगर सब जगह लोग खेल सके उसे, और फिर जब उनकी जिज्ञासा बढ़ती है तो उसके बारे में चुनिंदा वीडियोस वो सब इससे देख सकते हैं, और इस तरह से दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह यह है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी अच्छे वीडियोस हैं, जो कि बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, पर्यावरण के बारे में, पानी की समस्या के बारे में, वो सब अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करें तो फिर एक संकलन होगा, मिशन का संकलन, जो कि सभी कोई आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स कनेक्शन, देन विल कनेक्ट ऑन द स्क्रीन। या जस्ट बोलो वन मिनट। सर ने बोला हम लोग जो है गांव में पारंपरिक चिकित्सक जो कंप्लीट हो गए वो बैठे हैं। पारंपरिक चिकित्सक वैद्य वगैरह जो होते हैं उनसे भी कांटेक्ट करके वहाँ की जो भी औषधि पौधे हैं, अगर बच्चों को उनकी पहचान करवाएं, क्योंकि ये सीमित नहीं रहना चाहिए। आई थिंक कि सभी को औषधि पौधों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अगर उनको हम जानकारी देते हैं बच्चों को, चूंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, और उनको औषधि पौधों के बारे में जानकारी देते हैं, तो उनके प्रयोग पे और इन सब चीजों पे उनको बहुत बल मिलेगा। उनको ऋतुचर्या, दिनचर्या के बारे में समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही हम लोगों का भविष्य, वही उसको बदल, समाज को बदल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑन द सिमिलर नोट, जस्ट ऐड टू इट, अगर हम उस लोकल एरिया के जो पुराने सीड्स हैं, वहाँ के लोकल जो क्रॉप हुआ करता था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वहाँ के किसानों को, लोगों को दे सके, ओल्ड टूल्स विच वे यूज्ड इन दिस फार्म्स, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो वेरी अच्छा। नाइस। एक हमको लग रहा है कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है शुरू से, उसके बारे में अगर उस समय थोड़ा सा आइडिया उसको दिया जाए, ये एक हो सकता है। और एक डेविल्स एडवोकेट है, ये हम अगर स्केल में लेके जाना चाहते हैं तो हम ऐसा हेवी लोडेड ना कर दे जो सिस्टम में जा नहीं सकता है। तो वो भी थोड़ा दिमाग में नहीं, वो लेस इज मोर करेंगे बाद में। पहले ये डाइवर्जेंस हो गया है, सारे आइडियाज अभी एक आ गए हैं, और इस आइडियाज को अगर आप एक्सटेंड करें, एक पेज के ऊपर लिखें, इफ यू राइट डाउन ऑन वन शीट ऑफ पेपर एंड सेंड ए मेल टू अनिल प्रधान अपनी मेल आईडी दे देना, तो एक सेंटर पॉइंट हमारे पास रहेगा, जिसमें जो आइडियाज आपके अभी जो ट्रिगर किया है, इसमें आपके सोचेंगे। एक आइडिया आया कि वहां पे उसमें एम्पलीफायर होना चाहिए, म्यूजिक से स्टार्ट करना चाहिए, बसंत जी ने बोला, तो बहुत सारे आइडियाज आपके आ रहे हैं। तो एक अनिल प्रधान एट क्या नाम है जी, आईडी नंबर अनिल @youngtinker
.org, मैं नीचे अभी यहीं हाँ पे लिख देंगे लिखवा मतलब देंगे। तो उस पे अगर आप आइडिया डालेंगे, नहीं तो मुझे डालेंगे तब भी ठीक है। तो तो ये उसमें टाइटल में डाल दो इंस्पिरेशन कंटेनर। इंस्पिरेशन कंटेनर इज द प्रोजेक्ट नेम। अगले 3 महीनों में इसको हमें लाइव करना है और एक एक करके लाइव करेंगे, ये नहीं सारी चीजें एक बार में नहीं आएंगी, एक एक करके लाइव करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। So I'm listening all the ideas, but you divided into 4 boxes, but the ideas have come only 2, I think 2 or 3. So we left the women related thing. So what are the ideas? Maybe you can have small kind of narration, what is abuse, what is domestic abuse. Suppose any abuse happen and women, where they can approach kind of thing, we can have a small pamphlet kind of thing there. Related, somebody is telling that the discrimination, because nowadays many abuse is happening on students. You can see that what is bad touch and good touch, something how students can identify whether they are feeling comfortable with the touch by the teacher or somebody else. This kind of information also you can teach. Thank you. Thank you. योगेश जी भी कुछ ऐड करना चाह। अमोद जी। डॉक्टर अमोद जी प्लीज। जी एक्चुअली एक फर्स्ट एड किट है हमारी, जो जिसका वीडियो मैं राम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार दिखा देंगे। वो भी वो जो टिंकर्स लैब है ये उसी में रखी हुई है। तो उसकी खास ऑफर ये है कि वो 10,000 रुपए की एक किट है, और जो संस्था उसको लेना चाहती हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, या अगर लोग ज़्यादा होंगे तो हमें कुछ लॉटरी से निकालना पड़ेगा, हम आपको भेज देंगे और उसकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है हम उसको करा देंगे। बहुत अच्छी लाइफ सेविंग किट है जिसमें स्ट्रेचर भी है, उसमें अम्बू बैग है जिससे किसी भी व्यक्ति को एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आप लगातार सांस देते हुए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो वो उसका वीडियो मैं राम जी से कहूँगा वो दिखा देंगे बाद में। मैं अभी चला जाऊँगा। और दीपक मेरे साथी हैं, दीपक जरा खड़े हो जाएं। दीपक, हाँ दीपक और कृष्णपाल जी, इनके पास आप नोट करा दीजिएगा जो भी संस्था उस किट को लेना चाहती हैं, उसके बाद हम भेज देंगे। और ये इंटेलेक्ट की तरफ से है। मैं योगेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो हियरिंग एड वाला जो है, जो मंजू जी बता रही थी, आप प्लीज ऐड कीजिए। ये एंटरप्रेन्योर ने हियरिंग टेस्टिंग के लिए किट बनाई है, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आई टेस्टिंग के लिए किया था उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू योगेश जी। थैंक यू योगेश जी। तो चलिए अभी कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं जरा, कनेक्ट करते हैं इस चीज को। अभी हम लोग को बहुत सारे आइडियाज आए, मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो आए वो स्टूडेंट्स के सेगमेंट में आए। मुझे लगता है कि हमने इसको 4 सेगमेंट में कनेक्ट किया है कि कस्टमर जो हमारा बेस है वो किस किस प्रकार का कस्टमर है। पहला कस्टमर है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक कस्टमर हो गया। इसके लिए हमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट कर सकती हैं, ये पहले समझना है। दूसरा हो गया हमारे पास वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है और वो वुमेन पर क्या इंटरवेंशंस कर रही हैं, उनको हम कहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है फार्मर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथा है कम्युनिटी को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज है अभी तक के लिए हमने सोचा है कि एक कंटेनर एक गांव में 1 वीक के लिए रुकेगा, तो हमारे पास 6 से 7 दिन एक गांव में रुकने के लिए है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से सजेशंस लेना चाहूंगा, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा अटेंशन दीजिए जरा। So we have these 4 segments: students, farmers, women and community. Community का the biggest example was the नुक्कड़ नाटक जो हम लोगों ने देखा. We can have that in community. वैसे ही जितने भी organizations थे, we would request everyone to connect the dots और बताएं कैसे इसको कर सकते हैं. Every day we can divide the entire day into 4 segments. कि from morning यदि हम लोगों ने 9 बजे शुरू किया, 9 to 12, 7 o'clock, 7 से शुरू किया, 7 to 11 farmer. तो 7 to 11 फार्मर। फिर उसके बाद दूसरा सेगमेंट बच्चे जब स्टूडेंट्स का उसके बाद कर सकते हैं, when they are there in school। 11 to 2 women, 11 to 2 women कर सकते हैं। and 2 to 6 जब स्कूल बच्चे छुट्टी हो जाती है, जब वापस आ जाएंगे तो 2 to 6 स्टूडेंट्स कैन कम। और शाम को 7 बजे के बाद कम्युनिटी, 7 से 10 बजे तक कम्युनिटी। तो अब
ओह वाह, ये हमने सोचा नहीं था और ये बहुत अच्छा आइडिया है। गांव में लोगों ने टेलीस्कोप नहीं देखा और तारों को ऐसे देखा है, जूम करके कभी नहीं देखा, तो बहुत बढ़िया चीज रहेगा वो वहां पे। और तारे दिख जाएंगे, तारे दिख भी जाएंगे वहां तो। जी चलिए। तो इस प्रकार से हम इसको सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो जानने की बात यह है कि हम हर चीज को एम्बेड नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ जोड़ करके हमको टिंकर करके थोड़ा सा उसके अंदर डालना पड़ेगा, सो दैट ये बहुत ही एंगेजिंग हो। एंगेजिंग होने का मतलब मैं आपको समझाऊं, कई लोग ये कहते हैं कि सर आप चार्ट अंदर लगा दो, 10 चार्ट अंदर रहेंगी तो उसका अटेंशन वो चार्ट क्यों ग्रैब करेगी, वो ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, किस प्रकार से उसको बनाया जाए ताकि हर चीज जो वहां पे है उसको वो सीख के जाए। मंजू जी कुछ कहना चाहती हैं। तो अनिल, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें, और हम ये भी सोच रहे हैं कि सब कुछ टच एंड फील एक्शन में होना चाहिए। तो मेरा एक चाहे सुझाव रहेगा, या मैं ऐसे सोचती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर जो हैं वहां से हम शुरुआत कर लें और एक एक चीज उसमें ऐड होती रहे। जैसे जैसे जो तैयार होते जाएंगे तो हमें हमारी लर्निंग भी होती रहेगी। हम इंतजार नहीं करेंगे कि ये सब कुछ आ जाए फिर शुरू करें, और उससे हमें ये भी मिलता रहेगा कि हाँ 1 दिन के लिए होना चाहिए गांव में, कि 5 दिन के लिए होना चाहिए। सब एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे। पर जो भी कोई एक्टिविटीज आएंगी उनको हम सब मिलके जो संस्थाएं हैं कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि जो चाहती हैं वो भी जाए, लेकिन वो एक्शन और टच एंड फील के माध्यम से जाए। तो टच एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जी, थैंक मंजू यू। जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बोला, और मुझे लगता है कि एक एक बार लेके टेस्ट करेंगे, फिर क्या चीजें काम की, पैटर्न्स एंटी पैटर्न्स हम लोग देखेंगे, फिर से रिडिजाइन करेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा सुझाव था। और ये जो कंप्लीट जो मॉड्यूल्स हमको फिर बनाने पड़ेंगे कि डे वाइज हम लोग कैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं, 6 दिन में उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, और हर चीज में जैसे हमने बोला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है टच एंड फील वाला। एक छोटा सा चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एज ए चाइल्ड मेरे दिमाग में एक चीज आता था, और मैंने कल भी इनफैक्ट एजुकेशन में इसको समझाया, और एज ए चाइल्ड मेरे दिमाग में ये आता था कि 2 चीजें ऐसी हैं, 2 प्लेस ऐसी हैं वेयर स्टूडेंट्स वेयर पीपल आर गोइंग एंड दे डोंट वांट टू बी। देयर आर 2 places where people are going and they don't want to be there in that place. The first one is a jail and second one is a school. तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे ये फील होता था, मेरे को वहां पे जाने का कोई मोटिवेशन नहीं होता था। क्यों नंबर लाने हैं, 10वीं पार कर लो, फिर 12वीं पार कर लो, फिर बीटेक कर लो, जॉब कर लो, क्यों करना है? तो उस क्यों का जवाब मुझे कोई नहीं दे पाता था। तो मुझे लगता है कि हम लोग यदि इस इंस्पिरेशनल कंटेनर से वाई इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट कर लें, क्यों पता कर सबको बता दें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इंस्पिरेशनल कंटेनर है वो सार्थक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। Okay, now next. So this creates a connection and the point where we can look at it, that experiment in 1.0 of container. Maybe 2 years later we'll have a 2.0 of container based on the experience of this. So this cluster development program, which is started with 100 clusters, idea is this 100 clusters can we cover up in next 1 year? What kind of best modus operandi, कैसे हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाएं। अभी वो हम प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 20 फुट बाय 8 फीट का है, तो उसमें हमें देखना है या तो ट्रक पे ले रखें या फिर ट्रैक्टर से इसको पुल करें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं अभी, ये हम किराए का क्रेन लेके उसको बार बार चेंज करें, ये सब चीज़ें अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं। पर ये सबके आइडिया मिलेंगे कि उनकी सड़कें कैसी हैं, उस क्लस्टर की सड़कें कैसी हैं, कौन सा राइट मोड होगा इसको शिफ्ट करने का, और कौन से लोग ट्रेन हो जाएंगे इन सब चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, और कौन सी हमें वॉलंटियर्स चाहिए होंगे जो वाईफाई से उनसे साथ कनेक्ट हों, क्योंकि हम सब जगह हम एक्सपर्ट नहीं ले जा सकते हैं। उनके वीडियोस कुछ होंगे, कुछ ट्रेनिंग के कैप्सूल बनाने पड़ेंगे, तो काफ़ी सारा काम होगा। सब संस्थाओं को अपना अपना मॉड्यूल, उनको एक दिन डे 1 किसी को मिल जाएगा, डे 2 किसी को मिल जाएगा, डे 3 किसी को मिल जाएगा, डे 4, तो 6 दिन हैं हफ्ते में। तो 6 दिन में हम 6 × 4 सेशन, हमारे पास 24 सेशन हो सकते हैं, और 24 सेशन को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें।
और क्या क्या चीजें कंटेंट उसकी ऑर्गेनाइज करें, वो ये पूरा फ्रेमवर्क में डेवलप हो जाएगा। तो इट्स जस्ट ए एक्सेलरेशन टू सीटीसी प्रोग्राम, इट्स नथिंग न्यू प्रोग्राम। जो भी क्लस्टर में अभी हो रहा है वही चलेगा। ये एक इम्पिटस है, एक थोड़ा सा ट्रिगर है। जैसे तो ये पूरा ये नहीं है कि नया कुछ नई चीज है। क्लस्टर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में जो भी है उसका एक ट्रिगर पॉइंट है फॉर डूइंग समथिंग एक्सपीरियंशियल। जो हमने फाइंड किया कि हम गांव में नहीं पहुंच सकते और बच्चों को नहीं करा सकते, आरी कैसे कटानी है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन से होते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। इतने टूल्स हैं फार्मिंग, इतनी इनोवेशंस हो रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, कोई हम उसको गांव तक नहीं पहुंचा पाते। और जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें सब इनोवेशन आती हैं, बट कॉन्फ्रेंस से वो इनोवेशन गांव तक नहीं पहुंचती। आईआईटी में इतनी सारी इनोवेशन होती हैं, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाले बहुत इनोवेशन करते हैं, पर कोई गांव तक तो पहुंचते नहीं है, तो कोई जरिया नहीं है उधर तक पहुंचाने का। तो ये एक छोटा सा है, देखते हैं कि पहले अगले 18 महीनों में कैसे चलता है, फिर 2.0 की बात 2026 में फिर हम 2.0 की बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे। तो शुरू में पांच अगर हम कंटेनर बनाते हैं तो 5 डिफरेंट स्टेट्स में डाल के वी कैन डू द स्टार्टिंग पॉइंट 5 या 5-6 कंटेनर शुरू में बना के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो मंजू जैसे बोल रही है कि 1 by 1 वी कैन कीप एडिंग एक्टिविटी ऑन टू इट। सो गिव ए बिग हैंड टू अनिल। चंद्र बाबू कहाँ हैं? चंद्र बाबू इज देयर। I think this is amazingly, in 1 week time, they bought a container, they put the fabricator to put it for this event. Just 4 days time. It's amazing to see Chandra Babu from the project manager along with Anil, and they were coordinating from, he was in Bhubaneswar, Chandra Babu was in Chennai, and I was not hoping it will be visible before this event because it is such a short time to get something which is working. होप इज ऑलवेज देयर इन इंटेलेक्ट। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा पहला इनकाउंटर हुआ था पिछले बार जब हम लोग नासा रोवर चैलेंज में जा रहे थे। हम लोग तो यूएस पहुंच गए थे, हमारा रोवर इंडिया में रह गया था। तो इंटेलेक्ट की टीम में वही चंद्र बाबू जी थे और दूसरी पूरी टीम थी। 4 दिन के अंदर वो, मतलब हम लोग 4 दिन पहले जाके यूएस में है, वहां पे 2 दिन में यहाँ से वो उसको उठाना और लेके वहां पे पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस वजह से हमको एक अवार्ड भी मिला नासा में उन बच्चों को। सोचिए, रोवर बनाया 1 साल, उन बच्चों ने मेहनत की, अपने रोवर को वहां पे चलता हुआ नहीं देख पाते, वो वहां पे हो गया। इस बार जब अरुण जी ने बोला 1 वीक में, मैं होपफुल था कोई हो या ना हो मैं होपफुल था कि हो जाएगा। वो रात को कॉल करेंगे, मैंने बोला ठीक है भैया आपका कॉल आएगा, मैं तो बिल्कुल उठाऊंगा। तो मैं कॉल उठा के ठीक है क्या क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे लोगों से बात हुई। बट आई एम सो हैप्पी कि आप 2 महीने से आइडिएट कर रहे हैं, इतने सारे लोग 2 महीने से आइडिएट कर रहे हैं, तो 1 वीक में क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, आपके सामने भी खड़ा है बन के। थैंक यू।